अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद, वज़ीर आला KCR ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। किसानों की भलाई के लिए TRS हुकूमत के दावे खोखले, सीनियर कांग्रेस कायद V हनुमंतराव ने लगाया इल्जाम। पुराने शहर में हमा मंजिला फंक्शन हॉल्स और कब्रस्तानों की तामीर का GHMC ने बनाया मंसूबा, 34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। YSRTP खातून कायद YS शर्मिला की अजला में पदयात्रा जारी, अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। यापराल जवाहर नगर में गांजे के पौधे उगाने वाला शख्स गिरफ्तार, MRO और महकमे रेवेन्यू ओहदेदारों के हमरा जवाहर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। मलाड देवपल्ली और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर कानूनी तौर पर PDS राइस की मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर दावा किया है कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह और बहबूद के अपने अहद की पाबंद है। मीडिया से बात करते हुए प्रगति भवन में उन्होंने बताया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी धान खरीदी के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी, ताहम मरकज़ धान खरीदने में कोताही कर रही है। ताहम रियासती हुकूमत किसानों को तमाम सहूलतें मुहैया करेंगी। उन्होंने बताया कि रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद का सिलसिला जारी है। कोविड वबा के दौरान भी किसानों को इमदाद दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि धान खरीदने के लिए रियासत में मालिये की कमी है, जबकि दूसरी जानिब मरकज़ इस मसले को तूल दे रहा है। उन्होंने बताया कि ज़राई महकमे के सेक्रेटरी की क़यादत में एक टीम ने दिल्ली जाकर इस मसले के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। किसानों को फ़ायदेमंद होने वाली फसल ही के सिलसिले में उन्हें तजावीज़ दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि मिलावटी बीज फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से सख्त एक्शन लिया जा रहा है और PD एक्ट का निफाज भी अमल में लाया गया है। वज़ीर आला KCR ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए बताया कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ से अपील की कि वो साल 2014 की कीमतों को बहाल करे, जबकि उन्होंने कई मसाइल पर मरकज़ को चैलेंज भी किया। ఈ రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరిపుష్టం చేయాలా, అట్లనే వ్యవసాయాన్ని స్థిరీకరించాలి, పల్లెలు చల్లగా ఉండేటట్టు చేయాలి, వృత్తి పని వాళ్ళందరికీ పనులు దొరకాలి అని ఒక అప్రోచ్ని తీసుకున్నాం. స్పష్టమైన పాలసీ. ఆ దిశలో చాలా పటిష్టమైనటువంటి బలమైన అడుగులు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసింది. అందులో మొదలుపెట్టింది అడుగంటిపోయినటువంటి భూగర్భ జలాలు పెంచడానికి, మొత్తం శిథిలమై చిక్కిపోయినటువంటి చెరువులన్నింటినీ కూడా మిషన్ కాకతీయ పేరు మీద అద్భుతమైనటువంటి చెరువులుగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ఇది యావత్ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి తెలుసు. ఆ తదనంతరం చాలా అస్తవ్యస్తంగా, లోపభూయిష్టంగా, ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియనటువంటి కరెంటును పూర్తిగా సంస్కరించి అనేక పెట్టుబడులు పెట్టి 24 గంటలు అన్ని రంగాలకు భారతదేశంలో మరే రాష్ట్రంలో లేని విధంగా వ్యవసాయానికి కూడా 24 అవర్స్ క్లీన్ పవర్ సప్లై, వెరీ క్లీన్ పవర్, స్టాండర్డ్ పవర్, క్వాలిటీ పవర్ను కూడా సప్లై చేసినాం. అది మాత్రమే సరిపోదు అనే ఆలోచనతో పెట్టుబడులకు కూడా చిన్న రైతాంగం, ఇక 93% పైబడి సన్న చిన్నకారు రైతులు ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు, ఇండియాలో కాదు, రైతు బంధు అనేటువంటి పథకాన్ని తెచ్చి మొదట పంటకు 4,000తో ప్రారంభించి దాన్ని 5,000కు పెంచి ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు పెట్టుబడి కోసం ఒక సంవత్సరంలో ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఒకటే ఒక ప్రభుత్వం ఇండియాలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అట్లాగే రైతులు చితికిపోయినారు కాబట్టి, బ్రతుకులు ఆగమైనవి కాబట్టి, చిన్న రైతులు పాపం చనిపోతే ఆ కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇబ్బంది రావద్దని చెప్పి దాదాపు 13-1400 కోట్లు
యావత్తు రైతాంగం యొక్క ప్రీమియం కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తూ ఒక పైసా కూడా రైతు మీద భారం లేకుండా రైతు బీమా పథకాన్ని కూడా తెచ్చినాం. ఇది కూడా యూనిక్ స్కీమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆ రోజు ఆయన ఎల్ఐసి చైర్మన్ గారే చెప్పారు, తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కస్టమర్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి అని చెప్పి ఆ చైర్మన్ గారే బాహాటంగా హెచ్ఐసిలో సభలో చెప్పినారు. ఇట్లాంటి ఇంకా అనేక చర్యలు. ఆ కాలంలో విత్తనాలు సరిగ్గా దొరికేటివి కావు, విపరీతమైన కల్తీ విత్తనాలు ఉండేటివి. మొత్తం భారతదేశంలో కేంద్రాన్ని కొన్ని నెలల పాటు కొట్లాడి ఒప్పించి పీడీ యాక్ట్, కల్తీ విత్తనాల అమ్మినుల మీద పీడీ యాక్ట్ ఉన్న ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. అది కూడా మమ్మల్ని చాలా సతాయించింది కేంద్రం అది ఇవ్వమంటే. అనేక నెలలు పోరాటం చేసి కేంద్రాన్ని ఒప్పించి కల్తీ విత్తనాలు అమ్మిన వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ తెచ్చిన ఒకే ఒక రాష్ట్రం ఇండియాలో. ఇది రైతాంగం యొక్క శ్రేయస్సును కోరుకోలేదు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम मुख्तलिफ अजला में कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर व रुकन असम्बली महेश्वरम पी सबिता इंदा रेड्डी ने जलपल्ली में वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तक़रीब में इस स्कीम के तहत मंजूरा तकरीबन 201 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 2,01,23,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा म्यूनसिपलिटी कमिश्नर जीपी कुमार और दीगर भी मौजूद थे। దాదాపు 201 పైచిలకు మెంబర్స్కి ఈరోజు షాదీ ముబారక్ చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సరూర్ నగర్లో ఇప్పుడే ఇచ్చారు. 59 షాదీ ముబారక్ చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. హైయెస్ట్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో హైయెస్ట్ షాదీ ముబారక్ చెక్స్ ఇచ్చిన నియోజకవర్గంగా మహేశ్వరం ఉంది. దానికి సహకరించిన, దాన్ని కోఆపరేట్ చేసిన తహసీల్దార్కి అందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత పేద ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేయడానికి షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. सबसे पहले तो मैं हमारे महेश्वरम एमएलए सबिता इंदा रेड्डी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और रंगारेड्डी में सबसे नंबर 1 शादी मुबारक स्कीम के चेका तकसीम करने में माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा मैडम का ताउन रहा, मैडम की काविश रही, मैडम की नुमाइंदगी रही, जिसकी तरफ से आज ये माइनॉरिटीज़ को शादी मुबारक जैसी स्कीम से फ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़े हमारे लिए, हमारे मैडम से और हमारे जलपल्ली के लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। तो हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और आज यहाँ पर 201 चेक शादी मुबारक के बांटे गए हैं। मैडम का उसमें शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आगे ऐसे ही हमारे बंगारू तेलंगाना की तहज़ीब, जो गंगा जमुना तहज़ीब के तहत ये बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी स्कीम नहीं है जो शादी मुबारक जैसी स्कीम यहाँ तेलंगाना में बनाई गई। हम केसीआर साहब का और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इब्तिदाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अंबरपेट के ज़ेर एहतमाम जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के ज़िमन में जलसे मिलादुन्नबी का इनेकाद मैदान जामा मस्जिद अंबरपेट में अमल में आया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निगरानी की, जबकि मेहमान मुखर्री के तौर पर मौलाना सैयद सैफुद्दीन अज़दक चिश्ती ने जलसे से खिताब किया। मुखर्रीन ने आमतुल मुस्लिमीन पर जोर दिया कि अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर उसवा हुस्ना को दाखिल करें और दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल करें। मुकामी मुखर्रीन में मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, सैयद अहमद पशा क़ादरी, रुकन असम्बली के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। सीनियर कारकुन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मोहम्मद भाई ने मीडिया को तफसीलात बताईं। उलमाए कराम ने ये भी लिखा और फरमाया कि एक तरफ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम है और एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक तरफ मिस्र की औरतें हैं, दूसरी तरफ अरब के जवान हैं। एक तरफ उंगलियां कट रही हैं तो दूसरे तरफ नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी गर्दनों को कटा रहे। उलमाए कराम ने बड़े हसीन तरीके से लिखा कि वो उंगलियां कटना एक वक्त का था, अब सुबह क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए लोग अपनी गर्दनों को कटाते रहेंगे।
वसल्लम के ताल्लुक से साहबा कराम ने फरमाया कि अगर कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखता तो ऐसा नजर आता कि चांद दिखता उनको चेहरे पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर उलमा कराम ने अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए, समझने के लिए हमको ये भी बताया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मौजज़ा दिया कि आप मुर्दों में जान डाल देते, आप मुर्दों में जिसकी रूह निकल जाती है उसको ज़िंदा कर देते। उलमा कराम ने लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाले मुबारक जिस जमीन पर लगा, वहां पर एक यहूदी ने उस खाक को उठाकर अपनी आंख पर लगा लिया तो अल्लाह ने उसकी आंख में बीनाई दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा की अजमत को बयान करना पड़ा, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर किसी ने, कि शैतान ने कुछ बात कही, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हबीब के लिए, आपकी बीवी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़वाज मुतहरा अमन उम्मत उम्महातुल मोमिनात के बाद अल्लाह ने 18 कुरान की आयतों को नाज़िल किया। मदरसा रियाज़ुल-उलूम वाक़ मुस्तफ़ा नगर में जलसे सीरतुन-नबी बउन्वान हयात तैयबा की रोशनी में इंसानी हुकूक़ का इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल-मारूफ जाफ़र पाशा ने जलसे की निगरानी की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद इरफ़ान मोइनुद्दीन रुकन तेलंगाना इंसानी हुकूक़ कमीशन ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। बानी मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। मुक़र्रीन ने सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ गोशों को उजागर करते हुए हुकूक़ुल इबाद के बारे में रोशनी डाली। जलसे के ज़िम्मन में मुनक़िद किए गए तक़रीरी मुक़ाबलेजात में बेहतर मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। नाज़िब मदरसा मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मदरसे की कारकर्दगी के बारे में तफ़सीलात भी बताईं। अगर इंसानी हुकूक जो भी रियासत में रहता है वो रियासत का फुलफिल करने की जरूरत है, और हमारे बड़े बड़े कुर्सियों पे जो खाली है और अक़लियत से खाली है, ऐसी कुर्सियों पे आपको बिठाकर हम खुश हो। दूसरा इबाद मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद अकबर, उससे वो उलझ गए हो, तो उन बच्चों को लिए हैं, और हमारे जिम्मेदारान मदरसा को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि असातिज़ा किराम ये मामूली नहीं रहते हैं, ये अपने को मिटा के आपको बनाते हैं, रात दिन आपके लिए अपने आप को यानी फिक्रमंद रहते हैं, कैसे बच्चे पे मेहनत की जाए, कैसे इनके मुस्तकबिल को बनाया जाए, और इसी मेहनत की वजह से आप लोग उभरते हैं और आपको पहचान बनती है, आपको लोग जानना शुरू करते हैं। तो ये असातिज़ा किराम भी बड़े आपकी इनकी कदर करना चाहिए और इनका एहतराम करना चाहिए। और तीसरी बात ये, तेलंगाना रियासत में कोविड टीका अंदाजी मुहिम के दौरान ताहाल 3.3 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जनवरी 2021 में टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिसके बाद से ताहाल 3 करोड़ 30 लाख कोविड टीके आवाम को दिए गए हैं। टीके हासिल करने वालों की ज़्यादातर तादाद 18 से 44 साल की उम्र के दरमियान है, जबकि बच्चों के लिए अभी टीका अंदाजी होनी बाकी है। तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में ये एजाज़ भी हासिल है कि यौमिया 1 लाख से ज़ायद टीके भी दिए गए हैं। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की खुदकुशी पर अफसोस का इजहार किया है। वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हालिया मिसाल किसान मुदिराज की है, जो नवाजी गुड़ा
कंदुकूर का मुतवत्तिन है। उन्होंने ऐसी अमवात के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि किसानों की भलाई इक़दाम करने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम रही है। उन्होंने वज़ीर आला KCR पर भी तनकीद की। ఆ ఏరియాలో కామారెడ్డి ఏరియాలో చనిపోవడం జరిగింది. ఏంది అంటే చిన్న ఇష్యూ అది. రైతులు పంట పండించిన ధాన్యం కొనుగోలు చేయమని గత 10 రోజుల నుంచి డీడై అనేటువంటి కుర్మాతను కులం చెందినవాడు 20 నుంచి 5వ తేదీ దాకా కూర్చున్నాడు. పండుగ లాగా అయిపోయింది. నా బిడ్డలు వస్తున్నారు, నా చుట్టాలు వస్తున్నారు, నేను వాళ్ళని ఏ విధంగా చూడాలి పండుగ వస్తున్నారు. वैसा कांग्रेस तेलंगाना कायद YS शर्मिला की रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पदयात्रा जारी है। प्रजा प्रस्थानम उन्वान से जारी पदयात्रा इतवार को ज़िले नलगुंडे के मुनुगुड़ा देहात पहुंची, जहां मुकामी अवाम ने वायएसआर कांग्रेस तेलंगाना कायद YS शर्मिला का खैर मकदम किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और TRS हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हुए वज़ीर आला KCR पर शदीद तनकीद भी की। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से GHMC हदूद में हमा मंजिला फंक्शन हाउस और क़ब्रस्तानों की तामीर का मनसूबा बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 34 करोड़ रुपये के सरफे से मज़कूरा हमा मंजिला फंक्शन हाउस और क़ब्रस्तान तामीर किए जाएंगे। GHMC ने ताहाल बंसीलाल पेट, भोईगुड़ा, चेतनिया नगर, सीताफल मंडी, रामंतापुर और LB नगर में इसी तर्ज पर कॉम्प्लेक्स तैयार किए हैं, जिनकी लागत 23.73 बताई गई है। बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में इस तरह की हमा मंजिला इमारतें बनाने का मंसूबा रखती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी की ख्वाहिश का इजहार किया है। आवाम ने कहा है कि पेट्रोल में ज़बरदस्त इजाफे से उन्हें माशी मसाइल का सामना है। आवाम ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की भी मांग की है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल में 5 रुपये की कमी का ऐलान किया था और दीगर रियासतों से भी एक्साइज ड्यूटी में कमी की ख्वाहिश की थी। पेट्रोल की रेट अगर कम हुए तो ज़्यादा गवर्नमेंट हमारे लिए सोचे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए तंगी हो रही है। उसके लिए वजह से बजट्स पूरे हिल रहे हैं। मैं एवरी डे या एवरी वीक में मैं पेट्रोल डलाते रहता हूँ। अभी पिछले मैं 4 महीने से देख रहा हूँ पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा था। पिछले 4 महीने में कम से कम मैं समझता हूँ 40 रुपये के आसपास में बढ़ गया है पेट्रोल का रेट। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक 5 रुपीज़ कम करके थोड़ा सा राहत दी। मैं चाह रहा हूँ कि और कम होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास वाले सर्वाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। सैलरीज, पेट्रोल इंसेंटिव्स वगैरह तो उतना ही रह गया। जैसे डिलीवरी राइडर्स है अपने, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हैं। अभी साथ ही साथ अब स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़कर पब्लिक को वो जो बड़ा बोझ है वो बोझ से हल्का करे। कृष्णकांत पार्क वाक़ई यूसुफगुड़े के करीब ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की तनखी की और हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने मज़कूरा मुहिम के दौरान 10 गाड़ियों को भी जब्त किया और केसेस भी दर्ज किए गए। वाज़ेह है कि हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने एक अपील पर रूलिंग दी है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता।
అడిగినాను. కంప్లైంట్ ఇచ్చినానంటే మాత్రం తర్వాత ప్రాబ్లం చాలా పెద్దగా అవుతుంది. ఇద్దన్నా పెట్టమన్నాడు అక్కడ. ఒకసారి ఇది మళ్ళీ బండి లైన్లో जवाहर नगर पुलिस ने बाबा सुख इत्तला पर एमआरओ और रेवेन्यू हक्काम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ऐसे मकान में धावा किया जहां गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे और एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया, जबकि उसके कब्जे से गांजे के पौधों को जब्त किया गया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया और केस भी दर्ज किया गया। ओके सर। मलारदेवपल्ली और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में अलहदा तौर पर पीडीएस राइस की गैर कानूनी मुंतकली और ज़ख़ीरा करने के रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र नगर हदूद के इलाके हसन नगर में एक मकान से 30 कुंटल पीडीएस राइस और मलारदेवपल्ली हदूद में एक ऑटो से तकरीबन 12 कुंटल पीडीएस राइस जब्त किया गया। इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए केस भी दर्ज किए गए। लगा लो। ఈరోజు మా డీసీపీ సార్ అండ్ ఏసీపీ సార్ ఆదేశానుసారం హసన్ నగర్ ఇంద్రానగర్ నందు కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇటు కార్డన్ సెర్చ్ సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇటు కార్డన్ సెర్చ్ నందు 8 వెహికల్స్ డిటైన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా హసన్ నగర్ నందు పీడిఎస్ రైస్ నిల్వ ఉన్న సమాచారం మేరకు అట్టి ఇంటిపై రైడ్ చేసి అందులో ఉన్న దాదాపు 30 గంటల వరకు రైస్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంటి దానిపై పంచనామా నిర్వహించి కేసు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से कौमी यौम तालीम और यौम उर्दू के ज़िमन में तहरीरी मुकाबलेजात का इनेकाद अनवारुम कॉलेज में अमल में आया। 3 ग्रुप्स में तकरीबन 800 तलबा और तालिबात ने शिरकत की और तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने मज़कूरा तहरीरी मुकाबलेजात की निगरानी की, जबकि कन्वीनर्स और मुमतहिन भी इस मौके पर मौजूद थे। मज़कूरा मुकाबलों के इनामात 11 नवंबर को उर्दू मस्कन में मुनक़िद होने वाली कौमी यौम तालीम की तक़रीब में दिए जाएंगे। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट एकेडमी वी कृष्णा अताउल्ला खान अकाउंटेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से आज तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। हाई स्कूल के लिए हमने अलहदा टॉपिक रखी, इसमें अल्लामा इक़बाल का पैगाम बच्चों के नाम, और इंटर और डिग्री सतह के लिए हमने मौलाना आज़ाद की शख्सियत के ऊपर, मुल्क की तामीर में उनके हिस्से के ऊपर एक उन्वान रखा। और पीजी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हमने अलहदा रखा, इसमें उर्दू की तरक्की तरवीज के लिए इम्कानात और वसाइल और इम्कानात के ऊपर अलहदा हमने उन्वान रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक बेहतरीन आज इसका मुज़ाहरा हुआ, बल्कि ये रियासती सतह का मुकाबला दूसरा हमारा तहरीरी मुकाबला था, जिसमें तकरीबन 500 तलबा ने हिस्सा लिया। अब आपने देखा कि अभी इतना अच्छा उसको आज हमारा रिस्पांस मिला है इन मुकाबले का। हमारे इन मुकाबलों का मकसद न सिर्फ बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाना है, बल्कि इनके अंदर तहरीरी सलाहियतों को आगे बढ़ाना है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें मैं समझता हूँ कामयाब हुए हैं। अब इस मुकाबले जात के तीनों इनामात, इनाम अव्वल, इनाम दुवम, इनाम सुबम का ऐलान हो। चिंतलमठ इलाके में एक बड़ा सांप निकल आने से मुकामी अवाम में सरासरगी देखी गई, जिसके बाद राजेंद्र नगर पुलिस को मुतल्ला किया गया और पुलिस ने स्नेक सोसाइटी को इत्तला दी। मज़कूरा सोसाइटी के अराकीन ने सांप को पकड़ा और मुंतकिल किया गया। चले आता मस्त जाता उसमें सुकून से। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद, वज़ीर आला केसीआर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। किसानों की भलाई के लिए टीआरएस हुकूमत के दावे खोखले, सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने लगाया इल्जाम। पुराने शहर में हमा मंजिला फंक्शन हॉल्स और कब्रस्तानों की तामीर का जीएचएमसी ने बनाया मंसूबा, 34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वाईएसआरटीपी खातून कायद वाईएस शर्मिला की अजला में पदयात्रा जारी, अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। यापराल जवाहर नगर में गांजे के पौधे उगाने वाला शख्स गिरफ्तार, एमआरओ और महकमे रेवेन्यू ओहदेदारों के हमरा जवाहर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। मलारदेवपल्ली और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस राइस की मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।